हे एवरीवन, सो लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग क्या है? इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो सेक्शन इंटेंड टू चेक योर स्किल इन आइडेंटिफाइंग एंड argument evaluating statement, reaching at a conclusion and formulating an opposite appropriate cause of term। ठीक है, appropriate cause of action है ये। ठीक है, appropriate cause of action। ठीक है, it is an important section, it is an important section of reasoning which is asked in almost all the bank and insurance examination, practically in higher phase of exam। ठीक है, like phase 2 मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस आफ्टर अपीयर इज ट्रिकी होते हैं और स्टूडेंट डोंट पे अटेंशन मच ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, बट इफ अप्रोच वेयर राइट टेक्निक इट कैन गिव अस गुड रिफॉर्म मार्क्स। ठीक है, और it demands to have ability to think clearly, bring unbiased and understanding the logical connection between the ideas given। ठीक है, कॉमन टर्म्स यूजर इन कैटेगरी। कॉमन टर्म्स कौन कौन से होते हैं? कोर्स ऑफ एक्शन में क्या बोलता है? समाधान, आर्गुमेंट, तर्क, अजप्शंस, पूर्वानुमान। ठीक है, इन्फेरेंस, इंफॉर्मेशन, अनुमान लगाना, काउज और इफेक्ट, कारण और इफेक्ट, प्रभाव। ठीक है, काउज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव था। ठीक है, तो काउज ऑफ ये क्या है? कोर्सेज ऑफ एक्शन, समाधान। ठीक है, तो स्टेटमेंट नेचर रहता है, फिर प्रोटिमेट सिचुएशन रहता है। ठीक है, गिवन कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है वो finding solution of the problem in the simple language statement will carry problem and cause of actions will have a solutions। ठीक है, hence we need to find the feasible and fractional feasible and practical solution। ठीक है, to keep in mind while solving this type of question। ठीक है, always assume yourself at the place of higher authority of the problem concerning department। ठीक है, a correct solution should either reduce the problem or improve the situations created by the problem। ठीक है, never take any harsh actions for anyone, never go against the government never go against the government rules terms। ठीक है, a course of actions should be feasible and should realistic to the practical aspects of life and hence the given problem। ठीक है, दूसरा क्या होता है? आर्गुमेंट, मतलब तर्क देना। फिर स्टेटमेंट नेचर क्या रहता है? इशूड बेस्ड को सिचुएशन रहते हैं, इशू बेस्ड सिचुएशन रहता है। ठीक है, और गिवन आर्गुमेंट क्या रहता है? आइदर स्ट्रॉन्ग रहता है और वीक रहता है। नोट करने वाले इशू मीन्स क्या होता है? टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच वी आर अनेबल टू सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है? नेक्स्ट रहता है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ आर्गुमेंट विच कैरीज यूनिवर्सल फैक्ट। ठीक है, प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली feasible फैक्ट्स रहते हैं। ठीक है, feasible पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इफ इट मस्ट हैव अ रीजन इन इट विच इज रेलिवेंट टू द गिवन सिचुएशन। व्हाट इज द वीक आर्गुमेंट? वीक आर्गुमेंट क्या होता है? टाइप ऑफ आर्गुमेंट विच इज illogical और impractical। ठीक है, irrelevant रहता है और absence of universal fact रहता है। It may not be directly related to the statement or situation given। It can be optimum based। ठीक है, और ambitious रहता है और superficious रहता है। ठीक है, strengthening an argument। ठीक है, strengthening or argument, adding additional facts, statistics, export, action, explains or example or support the given argument। ठीक है, anticipating and providing potential objections। ठीक है, improving the quality of premises। ठीक है, weakening an argument, weakening का मतलब क्या होता है? process
reducing the logical strength of the argument, insufficient evidence, or neglecting the given argument, contradictory data, ठीक है, ये सब रहता है। नेक्स्ट क्या रहता है, अजम्पशन बेस्ड, मतलब पूर्वाधारण और पूर्वानुमान, ठीक है। एन अजम्पशन इज समथिंग यूजुअली टेकन फॉर ग्रांटेड और प्रीसपोज्ड, ठीक है। इट इज द हिडन और इट इज द हिडन और क्या है, अनसेड पार्ट, ठीक है, अनसेड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट which a person assumes to be understand by the listener or reader, ठीक है। assumption is dependent on the our past experience, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरफेरेंस अनुमान, तो it is a type of conclusion we draw depending on the narration, ठीक है। It is used to draw a conclusion about the unknown information or a fact on the basis of known, ठीक है। इन्फेरेंस जो होता है इज मोर लाइक अ मोरल ऑफ द पैसेज एंड नॉट डायरेक्टली रिटन एनीवेयर इन द पैसेज, दैट इज इट इज रिड्यूस द मीनिंग, ठीक है। और होता है क्या, काउजेज और इफेक्ट, ठीक है। काउजेज मीन्स क्या होता है कि द रीजन फॉर समथिंग इज हैपन, और इफेक्ट का मतलब क्या होता है, चेंज दैट इज काउजेड बाय समथिंग, और वी कैन से रिजल्ट ऑफ समथिंग बीइंग डन, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक इज सेट ट्रिकी, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो ट्रिकी रहता है। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चंस ऑप्शन, ठीक है। चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस in this type of question is a tricky part, ठीक है। Let's take a general option set here, ठीक है। If statement 1 is the cause and statement 2 is its effect, if statement 2 is the cause and statement 1 is its effect, if both the statement 1 and 2 are independent cause, if both the statement 1 and 2 are effect of independent cause, if both the statement 1 and 2 are effect of some common cause, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है कि words like best, only, each, any, definition, definitely, every, which, when shows rigidity in any type of critical reasoning question should not be given importance, ठीक है। उन सबको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चंस बनाएंगे तब देखेंगे कैसा क्वेश्चंस आता है इसमें। टिल देन यहाँ पे रीजनिंग समाप्त होती है हमारी, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग के सारे नोट्स के सारे चैप्टर्स हमने कर दिए हैं, अब कुछ बचता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो रीजनिंग का प्लेलिस्ट तो बन गया है, वो देख लीजिएगा आप लोग। टोटल आई गेस 12 चैप्टर्स होंगे, तो कुछ अराउंड 16 वीडियोस बनेंगे, 16 वीडियोस बने हुए हैं, ठीक है। 16 वीडियोस को देख लीजिएगा। बाकी अब इसके क्वेश्चंस आएंगे, अब नेक्स्ट वीडियो से इसके क्वेश्चंस आएंगे, वो करेंगे हम लोग शुरू से। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस का भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कोर्स, वो उसका भी प्लेलिस्ट बनेगा और उसको अच्छे से समझाऊंगा मैं, बैंकिंग अवेयरनेस को पूरे पूरे डीप से समझाऊंगा मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।